हेलो वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ नीड्स फॉर ब्रेन्स। मेरा नाम है मुराद और मेरे साथ हैं तैमूर तैमूर। भाई। ये भाविका दिया। मोहम्मद। बिफोर आई बिगिन, आप सबके क्या हाल है? हंसी लगी हुई, अब ठीक हो गया। इतनी हुर्रे आई हैं आज। अच्छा, हमारे आज जो दो मेहमान आए हैं, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैं इंडिया से हूँ और ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। तो बस यही है। I'm Bhavika. I am from India but living in Melbourne. And this is Independence Day special because in 1947, these two Oh. countries. Quick history lesson. Okay. Yeah, Quick one, I think this is what our forefathers said too. Okay, it's time to. लेकिन उसका मेरा छोटा तो एक ही वर्जन बाप ये है। था कि कुट्टी हो गई थी। क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, पाकिस्तान का पहले आएगा, और मैं हमारे गेस्ट से पूछना चाहता हूँ कुछ सवाल। Indians, are you ready? So my first Yeah. question is, what is इनसे the पहले पूछो perception- ये इंडिया के कौन-कौन पार्ट्स कौन-कौन से जी, पार्ट्स जी, हैं? चलो। आप इंडिया के कौन-कौन से पार्ट्स हैं? दिल्ली दिल्ली Delhi. दिल्ली 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 एक बार बोलें तो फिर नहीं पार्ट। अच्छा पार्ट्स। New Delhi, New Delhi, New Delhi, New Delhi. अच्छा नहीं, अच्छा, तो इनको तो फिर थोड़ी सी पंजाबी की भी समझ लगती होगी। Diya, इनको तुम्हारी बोंगियों की समझ आती है? हमें नहीं कुछ नहीं बिफोर आई हैव खोल टू के स्टार्ट बोलो। स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज। नहीं अच्छा जनता कह रहा हूँ, आवाम, सॉरी। आवाम आपसे जवाब ये चाहती है कि आपका बड़े होते पाकिस्तान के बारे में क्या परसेप्शन था? Okay, so it like, I mean, my grandparents are from Lahore and everything, so I think family wise it was very different. He used to remember going to Lahore. He used to talk about his village in Laya, and he used to say that Oh. I want to visit there, I want to die there and things like that. And he did, but he wanted to. And but in contrast to that, in school when we studied history, it was still like when we studied the partition and everything, at least for me, it was everything to do with like all that was told to us about Pakistan was that it was formed, and we didn't study further than that, in my opinion. I don't know if Dia's history teacher is different. we had the same history teacher, but I just Yeah. So, but at home it was always told that Pakistan is a place where we used to live before and things like that. That's what I've grown up with. But otherwise, like on the news and stuff, it was always like Pakistan bombs, जिंदाबाद। तो मैं समझा वो क्यों था? terrorists, Pakistan. Like seriously, like. Then when I came to Melbourne and met Ali, I was just like, oh my god, like he's a human and he's nice and stuff, and yeah. I'm Ali, by the way. And then he did that. Lost respect. Jia, Diya. what about you? I grew up hearing very nice things about Pakistan because even my mom's side is from Punjab, and even so I heard very good things, but I mean now you don't hear such nice things anymore, but we thankfully have the brains to make our own perceptions of what Pakistan is. But I worry for the people who are young, that younger generation now, because now you don't hear the things that we grew up hearing. हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है आजकल के बच्चों में, टीवी से नहीं, कितने मैं करीब है। वैसे मैं दिया और भाविका से पूछना चाहता था कि जब तुम लोग इंग्लिश बोल रहे होते तो मोहम्मद को समझ आ जाती है? हमारी इनकी दोस्ती में लगता है शुरू इंग्लिश में हुई थी। नहीं, इनकी इंग्लिश टीचर भी सेम थी। नहीं, मैं तुम्हारी और उनकी बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। When I met Ali, he didn't talk at all. Like he was just eating food. He didn't say anything. ये वो- जान के कह रहा होगा, मेरा गंगा छोला बन रहा होगा मोला। कि लोग इसको हाँ। खुद खाना दें। नहीं, आपने गोलमाल में नहीं देखा था गोंगे को कितना प्यार किया उन्होंने? गोलमाल में तो गूंगे नहीं थे। गोलमाल उसकी में वही- धमाल तुम्हें पता है ना, उसकी पूरी जिंदगी में वही 3 फिल्में चली हैं।
अच्छा अच्छा अब यही सवाल मैं तैमूर भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बड़े होते हुए इंडिया के बारे में क्या परसेप्शन था? अच्छा, मैंने कहा पाकिस्तान। यार जब हम तो मैं तो जब छोटा था तब तो इंडिया और पाकिस्तान बना भी नहीं था। लेकिन नहीं जब अच्छा जैसे हाँ, हमारे भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से है ना? नहीं मयान सिविलाइजेशन उससे भी पहले। Sorry to interrupt, but I had a question. How old are you, Taimur bhai, if you don't mind me? अली से कुछ 2-3 हफ्ते छोटा और मोहम्मद से 2-3 साल छोटा। क्या? लेकिन मेरी ये परसेप्शन थी कि हमारे भी जो जैसे परदादा या जो उनसे पहले थे वो भी इधर से आए थे, इंडिया साइड पंजाब से थे, जो ये क्या कहते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं हरियाणा। पता, लेकिन नहीं जलंधर शायद, आई थिंक, आई डोंट नो। लेकिन वो था कि गुराए थे वो, और जो गुराया कास्ट है वो इधर इंडिया में भी है। इवन के मुझे यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग जो मिलते थे इंडिया से जो आए थे वो भी गुराया थे। और खैर हमें तो यही पता था कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो पहले इधर आए थे पाकिस्तान, फिर उन्होंने सिख थे, उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था, जो गुराए थे खास तौर पे। तो वैसे बस यही परसेप्शन था, कोई मतलब कि वही जो हमने बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा हुआ है, जो कि बहुत बायस्ड होता है, बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक किस्म की बुक्स होती हैं जो कि सही नहीं होती। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे अक्ल आती है तो वही वाली बात है, यू मेक योर ओन डिसीजंस। तो अब क्या तो बात है हीरो, क्या किसने की ये बात? बड़ी प्यारी बात है ना? ये बस यार। ग्रोइंग अप मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी थी अस अगेंस्ट देम वाली, और मेरी एक कहानी है जो इसको बता सकती है कि मेरी क्या परसेप्शन थी। कि मैं बचपन में, जब मुराद तुम्हें याद होगा, हमारा जो घर था उसकी जो छत थी उस पे, अगर तुम तो छोटे थे तुम्हें याद नहीं था, मैं परिंदों को वो जो होते हैं ना टोस्ट, क्रम्स क्रम्स वो देने जाता था। और जब परिंदे आते थे तो मेरे दिमाग में होता था जो कौवे हैं वो इंडियंस हैं और जो चिड़िया हैं वो पाकिस्तानी। At the tender age of like 15, you knew the difference between kauas Yeah. and Not parinde. 15, I was pretty young, I was like 25 or something. तो उसमें ये होता था, मैं कौवों को फिर खाना नहीं देता था क्योंकि वो इंडियंस हैं, और आई थिंक इसलिए भी था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बहुत देखता था और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट राइवलरी। और बस लेकिन यही तो बाइंडिंग फैक्टर था इंडिया और पाकिस्तान का, और तो कुछ भी नहीं था। वो बड़े बॉलीवुड और होके क्रिकेट ही But था। at this, but at the same time, like the most I saw anybody embrace that they're Indian was when there was an India-Pakistan match. Yeah. उससे पहले हाँ, किसी ये को तो फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कहाँ से है, बट इंडिया पाकिस्तान के गेम पे सब इंडियन सारे जर्सीज निकलते थे, इंडिया 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 बेसिकली। फ्लैग्स डलते थे इंस्टाग्राम बायो पे। फिर आईपीएल आ गया। हाँ क्या आ गया? आईपीएल। आईपीएल। यार मेरी बड़े होते मैं वैसे काफी हार्डकोर इंडिया हिटर था। हाँ, मुझे चेन ईमेल्स मिलती थी, मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को भेजते थे, जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इंडिया में एक बंदे ने कुरान जला दिया था, इसलिए अब इंडिया को हीट वेव्स आती है। कहते वक्त अल्लाह ताला का अज़ाब आया है। He really taught me a lot। मजाक कर, मैंने इसकी बात मानी नहीं थी, लेकिन फिर ऑब्वियसली बड़े होके काउंटर स्ट्राइक में खेलता था, उसमें मेरा एक इंडियन दोस्त बना था जिंदगी में पहली दफा, और उसने मुझे बताया था कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। और इसके बाद से I just see them as, or us as one people, like I don't see borders। I make my own decisions। लेकिन that is the most absurd story I heard about Indians growing up। What is Yeah, the that was going to be my next question. Actually, I haven't heard any absurd, like crazy story. Like I've just nothing like Murad saying, I don't have time to send chain emails. But I heard something recently कि मैं Uber में थी, recently नहीं, मतलब 5 महीने हो गए, but I was in an Uber, and because of COVID and all, you know, there are a lot of these relief vans going around feeding the monkeys that have come out in Delhi. Okay, because there are less people, there are more monkeys these days on the roads and all that, animals. Okay, so
वो मैंने आई टोल्ड द ड्राइवर, आई सेड ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट, तो ही सेड ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन? ही सेड कि ये सब एंटी नेशनल लोग हैं जो पाकिस्तानी स्पाइस को खाना खिलाने जा रहे हैं। तो आई सेड बट ये तो बंदर को खाना खिला रहे हैं, वो तो हमें दिख रहा है सामने, ब्रेड और केले खिला रहे हैं। एंड ही सेड नहीं, हाँ केले तो बंदर को खिला रहे हैं बट बंदर ही पाकिस्तानी स्पाई है। So I said तो ये तो I was curious like when I hear these things nowadays I don't say कि अच्छा नहीं है, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। I sometimes even listen कि at what level does the logic disappear, you know, when does logic apply till? So I asked him, I said कि ये बंदर अगर spy है तो इनका हायरार्की कैसे चलता होगा, बंदर मतलब किसको रिपोर्ट करते होंगे, कितने बंदर आए होंगे दिल्ली कैपिटल में कि spy Imran's करते all at the top and then the bandars come. Yeah, like, and he said नहीं वो आते हैं, एक सीजन होता है which he means monsoon. He said सीजन होता है वहाँ, तब बंदर आते हैं, आपको उस टाइम बंदर और दिखते होंगे, और वो आते हैं स्पाई करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे चलो 500-600 बंदर वापस जा रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान, वो हमने चलो इग्नोर कर दिया। बट ऐसे चलो तो फिर वो जब वहाँ जाते हैं तो फिर उनको वो डिकोड कैसे करते हैं कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है बंदरों ने। तो he said बंदर को बंदर की अब समझ आ जाती है। Oh, heavy. And that was it. And I've read this on WhatsApp and I've like, this is not something that he only believed. This is something a lot of people believe. जाते जाते जुगत भी मार गया ड्राइवर। मतलब उसने एंड में ह्यूमर और लॉजिक को मिला दिया। पंच लाइन अच्छी थी वैसे। हाँ but it's true. बंदर से याद आया मोहम्मद, अब तुम अपनी स्टोरी सुनाओ यार मैं आई विल टेक दैट क्योंकि मुझे माइक तो मिल जाता है इसी बहाने। पर आई थिंक भाविका की बारी थी, बंदर से मुझे आप वैसे याद आए थे। मेरी कोई story, I haven't heard anything stupid like this, but I always just assumed that everyone was in a burqa in Pakistan, like it was just a thing that you wouldn't be seen, like a woman couldn't be seen without a burqa, which is just an assumption. लड़कियां क्या होती हैं वैसे ऑनेस्टली सबसे बड़ा फैक्टर जो था मेरे लिए वो शाहरुख खान था। शाहरुख खान ने मुझे दिखाया था कि इतना कमाल बंदा अगर वहां से हो सकता है तो फिर रोना मत। तो फिर there must be propaganda. I think मैं और मुराद बहुत डाई हार्ड शाहरुख खान फैन थे, बहुत डाई हार्ड। बहुत। मुझे याद है कि अगर शाहरुख खान की अभी भी कोई, अभी तो उसने पिछले 10 साल से शॉर्ट फिल्में की हैं, लेकिन अभी भी कोई उससे लड़ता है ना मेरे से कि उसकी ये फिल्म नहीं अच्छी थी, ये नहीं अच्छी थी, मैं लिटरली मैं रोने वाला हो जाता है, मैं लड़ाई करता हूं कि उसके बारे में कुछ नहीं कहना। असल में उसमें यही फीलिंग शाहरुख खान में एक चार्म है जो कोई और नहीं कैप्चर कर सकता। मैं बचपन में सोता नहीं था जब तक मुझे सूरज मोहम्मद दम नहीं सुनाते थे और मैं इमेजिन करता था कि शाहरुख खान एक सहरा में खड़ा हुआ है। What a guy! पर वैसे मुझे उसकी जो पुरानी मूवीज काफी ओवररेटेड लगती हैं। Those are fighting words. अच्छा, इसकी बारी नहीं आ रही, भाविका ने बता दिया। और No, but I had a question like related to this, which like, what's your most like favorite Bollywood movie, like three of you? All time? Like, yeah, of all time. Oh, ये तो बहुत मुश्किल है। ये नॉस्टैल्जिक फैक्टर से कभी खुशी कभी गम, लेकिन अगर प्रॉपर मूवी तो प्रॉब्ली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो मूवी थी ना जो बेसिकली जो अच्छी एक गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगर सिर्फ आप टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हो तो एक गैंग्स ऑफ वसेपुर, हाँ वो मूवी थी, वो उसमें एक्टिंग उसमें सब कुछ था। जो वैसे कमर्शियली मेरे ख्याल में वो वही थी जो अपनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आई थिंक मेरी जनरेशन के लिए वो उससे बड़ी कोई मूवी नहीं हो सकती, अभी तक नहीं हो सकती है। ये मुझे वो नहीं बड़ी अच्छी लगी थी, जिस्म देखी आपने? उसमें बिपाशा बासु ने क्या एक्टिंग करवाई है। हाँ रोज ना आते हुए देखते हैं हम। We're talking about movies. What is the one thing that you thought was like very Indian because that's what you saw in movies? Yeah. Like one stereotype. I think
I don't know if they're gonna say the same thing, पर मुझे तो वो वही जो आरती उतारते थे और फिर हाँ, आरती इज लाल लाइक पाउडर को लात मारते थे एंटर होने से पहले। चावल को लाल भी पाउडर को नहीं, वो उसको चावल को मारते थे भाई। टॉप में चावल था या लाल पाउडर था? लाल पाउडर इधर जाता है मांग पे and हाँ वो सिंदूर उसको देवदास, कहते हैं। उफ देवदास कोई और एक्टर बना नहीं सकता ये। मैं हाँ वो एक्टर ने एग्जैक्टली, बनाई भी नहीं है। नहीं नहीं बनाई वो है पहले, क्या वो रोल दिलीप कुमार ने पहले नहीं बनाई? अच्छा, गेट किस दुनिया में रहते हो? लेकिन अगर आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा कल्चरल आइकॉनिक हमारा शो था जो मुझे नहीं लगता इंडियंस को पता था उसके बारे में, जो है पंजाबी, उसका नाम गंदा है लेकिन पंजाबी टोटे जिसमें पंजाबी टोटे जिसके अंदर वो बॉलीवुड मूवीज की पंजाबी डबिंग करते थे, आग में आता था ओए हाँ, पंजाबी what? टोटे। वो उसको इनको शेयर करना कभी, मोहम्मद इनके अभी साथ देख- कभी वो दिखाना इनको। लेकिन आप लोगों को पता है मौत का कुआं क्या होता है? क्या? मौत नहीं, का इनको कुआं, नहीं अंदाजा होगा। ये मुझे लगता है पाकिस्तानी चीज है। हाँ कुआं like a well where you die. हाँ Okay. नहीं नहीं Like नहीं, literally. वो बेसिकली लिटरल मीनिंग तो यही है, लेकिन मौत का कुआं था पाकिस्तान में, जहाँ पे वैसे तो उसको मेन उसका ये होता है कि मोटरसाइकिल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये इंडिया में भी होता है, अच्छा हाँ इंडिया हाँ में भी होता है होता है Like होता melas है। and stuff you have it. मेला, हाँ बिल्कुल। या, लेकिन या, हमारा या। उधर होता है कि वहाँ पे जो हमारे वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उधर, वो पूरा ड्रेसअप होके उधर जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, और साथ मेला भी होता है, गाड़ियां भी गुजारते हैं अंदर, एफएक्स भी, गाड़ियां भी। हाँ, और मेहरान जो होती है। मोटरसाइकिल वाले यूं हाथ पकड़ के जाते हैं। That show that just came on Prime, that show. What is that show? Which show? With बता लोग। Petal Lok, usme in the end when he spoilers, but नहीं नहीं that he नहीं gets मेरे इससे याद आया, आपको जिससे नहीं पता था मौत का कुआं क्या होता है, आपको जब आपने पाकिस्तानियों से मिली है ना, तो आपको क्या लगता है कि फर्क क्या है इंडिया पाकिस्तान के लोगों में? क्योंकि सिमिलैरिटीज में तो बहुत बात होगी। अब हम इंडिपेंडेंस डे के एपिसोड है, आप कोई दुश्मनी भी हाँ। करें। you. ये तो काफी हेवी सवाल है, बट आई थिंक कि the biggest difference is that obviously everyone I know from Pakistan, meaning the three of you, have grown up. Obviously, when you grow up in a different environment, your values and obviously is very different, right? So like the first thing I realized about like Mohammed that was very different from me was that how big religion plays a role in his life. हमारे यहाँ it's not there at all, not because not only because we don't grow up hearing about it, but because I guess किसी को पता नहीं वैसे कि reason I know. reasons I तो just बहुत feel है। like it just in Hinduism as well, it's not as big of a part of your day-to-day life like Yeah. it is, from my assumption, in Islam. Our rituals, and they're very like occasion based rather than every day. I feel like, which is more of a habit now. So I feel like when and a God thing is a lot more like internal in our lives in that sense. But also another difference I felt with the men in Pakistan, like you, like Ali and Hamza and stuff, and you guys, it was just, you guys are a lot more like respectful in my That's opinion true. than people from that we know from क्या पाक रही है? Sorry, smile कर रहे हैं। just नहीं, the but way you guys Mute- talk. म्यूट करें, नहीं म्यूट करें। ज्यादा बोलती है आजकल ये अबे। हाँ, That's true, and it's a very basic like respect. Yeah. हाँ, Like you know that even the most respectful person I know from Delhi is kind of a Like when Douchebag. I met Mohammed for the first time, he would hug all the boys, but never, like, he would just put his hand out to if he met a girl. सर I felt so sad because I was like, you're hugging all the guys next to me. And when I come in, he's just like, he puts his hand out. And I'm like, what have I done wrong to not get a hug? But he was just like, no, I'm too shy to hug a नहीं, girl. उससे इसका स्मेल का मसला है। मुराद, पाकिस्तान के बारे में दिया और बुगा से पूछना है। पूछ लिया है, उनको पता है। एब्सर्ड स्टोरी, एब्सर्ड। Absurd. Absurd.
Oh my god. My question, कि what have you heard? Our question please. अच्छा मोहम्मद, अब ये बोल- तुमने ये इंटेलेक्चुअल फ्लो खत्म करना है तो अपना बता नहीं दो। नहीं, मेरे पास प्रॉपर जवाब है, मैं कल याद करके आया था। हाँ पॉडकास्ट को खराब कर माइक थोड़ा दूर कर लो। माइक और मेरा पार्टीशन हो रहा है।